गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी सीधे आपको ले चलते हैं, चूंकि वो गुजरात के धोराजी में इस वक्त मौजूद है। ગુજરાતમાંથી દેશવટો આપણે આપી દીધો, પછી વળી આપણી મુસીબત આવી ભૂકંપ, અને ત્યારે લોકો કહેતા હતા ગુજરાત તો મોતની ચાદર ઓઢીને સૂતું છે, ક્યારે ઊભું નહીં થાય. અરે આપણે એમાંય હિંમત કરીને બહાર નીકળ્યા કે ના નીકળ્યા. આપણું ગુજરાત 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે ભાઈઓ, મુસીબતોમાં જીવીએ, અને તેમ છતાંય આજે ગુજરાત વાત નિવેશની હોય, મૂડીરોકાણની હોય, વાત નવા નિર્માણની હોય કે પછી વાત હવે વિદેશોમાં નિર્યાત કરવાની હોય, નિવેશ હોય, નિર્માણ હોય કે નિર્યાત હોય, આ મારા ગુજરાતનો બધે ડંકો વાગે છે. એ તમારા બધાના પુરુષાર્થને કારણે, આ ગુજરાતીઓના જોમ અને જુસ્સાના કારણે ભાઈઓ બહેનો, સરકાર અને પ્રજા સાથે મળીને ખભે ખભો મિલાવીને કામ કરે, વિશ્વાસના વાતાવરણ વચ્ચે કામ કરે તો કેટલું મોટું પરિણામ આવતું હોય છે એ આજે આપણે દેશને બતાવી શકીએ. એવું ગુજરાતે કરી બતાવ્યું છે ભાઈઓ. આ 2 દશકાની આપણી ઉપલબ્ધિઓ આપણા સંયુક્ત પ્રયાસનું પરિણામ છે, આપણા સંયુક્ત સંઘર્ષનું પરિણામ છે, આપણા સંયુક્ત સંકલ્પનું પરિણામ છે. અને આ આપણી વચ્ચેનો જે અતૂટ બંધન છે ભાઈઓ, એ અતૂટ બંધનના કારણે આજે આપણે પ્રગતિના નવા નવા શિખર સર કરી રહ્યા છીએ. અને આ જ વિશ્વાસ સાથે, આ જ ભરોસા સાથે આજે આ સેવક ફરી આપણી પાસે આશીર્વાદ માંગીને વધુ મજબૂત ભાજપ સરકાર બનાવવા માટે આપણા આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છે. ગયે વખતે ધોરાજીમાં થોડું ચૂકી ગયા હતા, ખરું કે નહીં? બોલો, શું ફાયદો થયો? કઈ ફાયદો થયો? તો એવી ભૂલ કરાય? જરાય ના કરતા. ભાઈઓ બહેનો, આજે ભાજપા સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, આ જ મંત્ર લઈને આગળ વધી રહ્યું છે. અને આપણું લક્ષ્ય, આપણું ગુજરાત વિકસિત બને, સમૃદ્ધિના બધા જે માનદંડો છે એ માનદંડો આપણા ગુજરાતમાં હોય. અને આપણે ગયા 2 દયકાની જે મહેનત કરી છે ને, દશકો જૂની જે આપણી બધી ચુનૌતીઓ હતી, આ બધા પડકારોને પહોંચી વળવાની તાકાત હવે આજે આપણે ગુજરાતે ભેગી કરી છે. અને આજે ગુજરાતના લોકો અને ગુજરાતની આજની પેઢી ગુજરાતના વિકાસને માટે પૂરી શક્તિથી કામ કરવાનો મોકો મળ્યો છે. પહેલા જે વડીલો છે એમને મુસીબતોમાં જીવવું પડતું હતું, સરકારને મુસીબતમાં કામ કરવું પડ્યું. 20 વર્ષ આપણે જહેમત કરી, એક મુસીબતોમાંથી બહાર આવ્યા. અને હવે તો નવો જમ્પ લગાવવો છે, નવો કૂદકો લગાવવો છે, અને નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરવી છે ભાઈઓ. એના માટે કામ કરવું છે. તમે ગુજરાતમાં એટલો બધો આપણે વિકાસ કર્યો છે, કોઈ પણ વિષય પર તમે વાત કરો ને, કદાચ સપ્તાહ બેસાડવી પડે, એટલી બધી વાતો છે. ખાલી હું પાણીની ચર્ચા કરું, પાણીની. આપ વિચાર કરો, 20-25 વર્ષ પહેલા આપણા પાણીની દશા શું હતી ભાઈ? ટેન્કરો દોડતા હતા કે નહોતા દોડતા? અને ટેન્કરોમાં ખાઈકી ચાલતી હતી કે નહોતી ચાલતી? આપણે ત્યાં રાજકોટમાં પાણી માટે ટ્રેન લાવવી પડતી હતી. અને તમે જોયું તો રાજકોટમાં દરેક ઘરની બહાર એક નાનકડી કુંડી બનાવી હોય, 2 ફૂટ 3 ફૂટ ઊંડી કુંડી. અને કુંડીમાં ઊંડી કરે ને ત્યાં પાઇપમાંથી પાણી કાઢીને માંડ કરીને ઘરમાં 2-4 ડોલ પાણી આવે, એવા આપણા દિવસો હતા. પાણી માટે આપણે ટળવળતા હતા. આપણું આખું કાઠિયાવાડ પાણીના કારણે ખાલી થવા માંડ્યું હતું ભાઈઓ. એમાંથી બહાર નીકળીને આપણે પાણીને એક શક્તિમાં પરિવર્તન કરવા માટેનો મુદ્દો ઉપાડ્યો. ટેન્કરોમાંથી આવતામાં, અને એમાંથી ભાઈઓ બહેનો આજે જુઓ પાણી કેવી રીતે આપણે એક પ્રયાસ કર્યા છે. આપણી માતાઓ બહેનોને પાણી માટે 2-3 કિલોમીટર જવું પડતું હતું, માથે બેડા લઈને ફરવું હતું. અને પાણી માટે તોફાનો થાય. રાજકોટમાં તો પોલીસ મૂકવી પડતી હતી કે પાણીનું ટેન્કર આવે તો ભાઈ લૂંટાલૂંટ ન થાય, પોલીસ લડાઈઓ થઈ જાય.
અબોલા થઈ જાય, મોલનામાં થાય, કોઈના જોડે બોલે નહીં, એવી દશા આવી જતી હતી. આ આપણે ગામડાઓ ખાલી થતા જોયા છે. બાળકો, વડીલો, પશુઓ આપણા હિજરત કરતા હતા. આ દશા જોઈ હતી અને આપણે માનીને ચાલતા હતા કે ભાઈ શું થાય, વરસાદ પડતો નથી, ગુજરાતમાં તો પાણી વગેરે આપણે જીવવાનું છે, આપણા નસીબ જ હતા. બધી સરકારો આમ જ વિચારતી હતી. આપણે એમાંથી બહાર નીકળ્યા. આપણે નક્કી કર્યું કે ગુજરાત પાણી વગર નહીં ટળવળે. અરે ગુજરાતના લોકો પાણીદાર છે. આ પાણીદાર લોકોનો પુરુષાર્થ જો કામે લાગે ને તો પાણીની મુસીબતોમાંથી પણ મુક્તિ મળી જાય. એ મહાયજ્ઞ આપણે ચલાવ્યો અને એને તમે જો એક પછી એક જે પગલાં લીધા છે, ખાલી પાણી માટે જે કામ કર્યું છે એના પગલાં લીધા છે. આપણે ત્યાં તો કેનાલનું તો નેટવર્ક હતું જ નહીં ભાઈ. થોડું ઘણું દક્ષિણ ગુજરાતમાં હતું, એને તો ઠીકઠાક કરવાનું આપણે કામ કર્યું. પણ આપણે નક્કી કર્યું કે નવી નહેરો બનાવીએ અને જ્યાંથી પણ પાણીને આગળ પહોંચાડી શકીએ પહોંચાડીએ. આપણે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો, સ્પેસ સાયન્સનો ઉપયોગ કર્યો, બાયસેક દ્વારા ફોટોગ્રાફી કરાવી, ત્યાંથી પાણીના. तो गुजरात में तेजी के साथ विकास हो रहा है, बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और ऐसे में आपको बता दें कि मिशन गुजरात पर भारतीय जनता पार्टी अब बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया। आफ्ताब के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची। आफ्ताब के घर के भीतर जांच चल रही है। आफ्ताब के घर जाने वाले रास्ते फिलहाल बंद हो चुके हैं। चूंकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी तो बड़ा अपडेट सामने ये आया कि आफ्ताब के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची। आफ्ताब के घर के अंदर जांच इस वक्त चल रही है। खलनायक आफ्ताब के कितने राज, इसी को लेकर जांच तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही। इसी बीच आपको बता दें कि आफ्ताब के घर के भीतर इस वक्त जांच चल रही है। आफ्ताब के घर जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दरअसल सुराग मिलेगा। महरौली की गलियों की छानबीन और तेज होगी। ये भी आपको बता दें कि टुकड़े टुकड़े सबूतों को जोड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तराखंड तक जांच पुलिस कर रही है। कुल्लू के तोश गांव भी पुलिस की टीम पहुंची। कुल्लू के तोश गांव तक श्रद्धा मर्डर केस की जांच पुलिस कर रही। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच जारी। छतरपुर में आफ्ताब के घर पर पुलिस की टीम पहुंची। श्रद्धा के पूर्व मैनेजर से भी पूछताछ होगी। तो देखिए, हर एंगल से जांच पुलिस कर रही है। और आपको बता दें, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के साथ साथ कुछ ऐसे राज्य जहां पर पुलिस की टीमें तफ्तीश में जुटी हुई है। छतरपुर में आफ्ताब के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची जांच के लिए, वहां पर भी जांच होगी। और इसी बीच ये भी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के एक गांव में भी पुलिस पहुंची। श्रद्धा मर्डर केस जैसे जैसे जांच की आंच इस पूरे मामले में तेज हो रही है, उसमें रोज नए खुलासे सामने आ रहे। हर रात से पर्दा हटने के बाद ही आफ्ताब की दरिंदगी सामने आ रही है। आफ्ताब श्रद्धा के साथ रोज मारपीट करता था, उसे सिगरेट से जलाता था। मारपीट की वजह से श्रद्धा इतनी कमजोर हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। आफ्ताब और श्रद्धा का ब्रेकअप भी हो गया था, लेकिन आफ्ताब ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अब बदल चुका है, जिसके बाद वो दोबारा रिलेशनशिप में आ गए। आप इस रिपोर्ट को देखिए। श्रद्धा वॉलकर ये महज बस एक नाम नहीं है, ये एक अनकही दास्तां है, जिसकी दर्द भरी कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान और परेशान हो गया। श्रद्धा का कातिल आफ्ताब पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। वो बार बार अपने बयान बदल रहा है।
कभी कोई और कहानी बताता है, कभी कुछ, लेकिन पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस के सामने जो ठोस सबूत निकल कर आ रहे हैं वो आफताब की बर्बरता की नई बानगी लिख रहे हैं। लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या ये सबूत कोर्ट की दहलीज पर टिक पाएंगे या फिर नहीं। मुंबई के ओजोन अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने मीडिया को बताया कि श्रद्धा 3 दिसंबर 2020 को इलाज के लिए आई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। डॉक्टर ने यह भी बताया कि वो फिजिकल वायलेंस के चलते ही आती, लेकिन उसने कभी भी खुलकर बताया नहीं। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी। वो एक्चुअली नेक पेन और बैक पेन करके आई थी। उसको उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और गर्दन की मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। फिर जब हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चालू किया, उसको फिजियोथेरेपी चालू किया, तो 2-3 दिन बाद उसका पेन अच्छे से सबसाइड हुआ, उसको मूवमेंट्स इंप्रूव हो गए। फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। अब आपको हम एक एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें यह साबित होता है कि उसकी गर्दन और पीठ में गंभीर चोटें थीं। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि श्रद्धा को मारपीट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 दिन तक उसका इलाज चला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि श्रद्धा के गर्दन और कमर में तेज दर्द था, पैरों में कपकपी की शिकायत थी, जी मचलाने की दिक्कत थी। अस्पताल प्रशासन ने यह भी बताया है कि आफताब जब श्रद्धा को अस्पताल लेकर आया तो उसने उसे अपनी पत्नी बताया था। श्रद्धा की गर्दन और पीठ में दर्द था और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। 3 दिनों तक श्रद्धा फिजियोथेरेपी लेती रही। 3 दिन के बाद अस्पताल से श्रद्धा को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद श्रद्धा चली गई। डॉक्टर ने उसे दोबारा चेकअप के लिए बुलाया था, लेकिन ना तो उसने कभी डॉक्टर का फोन उठाया और ना ही कभी वापस आई। डॉक्टर के मुताबिक श्रद्धा चोट की वजह बताने से कतरा रही थी। श्रद्धा और उसके दोस्त की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है जिसमें उसने पिटाई का जिक्र किया है। श्रद्धा ने उस चैट में अपने साथ हुई बेरहमी की दास्तां सुनाई है, आफताब के जुल्मों की कहानी बताई है। श्रद्धा मुंबई में जिस कॉल सेंटर में काम करती थी वहां के एक मैनेजर भी सामने आए हैं। उन्होंने श्रद्धा से चैट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि कल हुई पिटाई की वजह से दफ्तर नहीं आ सकेगी। मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर कम है और शरीर दर्द कर रहा है। मेरे अंदर बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। श्रद्धा ने अपने साथ हुई मारपीट की तस्वीर भी मैनेजर को भेजी थी। मैनेजर ने बताया कि श्रद्धा मेरी टीम के साथ 2020 में जुड़ी थी। वो बहुत ऊर्जावान लड़की थी। जब भी वो हिंसा या तनाव से गुजरती थी तो ऑफिस नहीं आती थी। कभी उसने ये नहीं बताया था कि वो पिटाई की वजह से नहीं आ रही है, बल्कि कोई और वजह देती थी। नवंबर 2020 में उसने अपने सूजे हुए चेहरे की तस्वीर भेजी थी। तब मुझे पता चला कि वो घरेलू हिंसा से गुजर रही है। 2020 में उनको हेल्प चाहिए था। जब मैंने उनको सामने हेल्प किया था तो वो हेल्प के दौरान जब वो पेन में थे, मैं उनको एक हॉस्पिटल लेके गया था जहाँ से उनको प्रिस्क्राइब ड्रग चाहिए था। वो उसके बाद मैंने उनको हेल्प किया था। उसके बाद कोई फ्यूचर में कोई बातचीत हुई हो, कोई हेल्प मांगा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी बताया हो? कुछ महीनों के लिए मेरा उनका इंटरेक्शन था, मगर मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। सिर्फ एक इंसिडेंट के लिए मैंने उनको हेल्प किया था। तो क्या श्रद्धा आफताब के जुल्मों को सहती गई? चुपचाप उसे किस्मत मानकर बर्दाश्त करती? जवाब है नहीं। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि श्रद्धा ने अपने साथ हुई हिंसा की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन चालबाज आफताब ने उसे समझाया था कि वो बदल जाएगा, जिसके बाद मासूम श्रद्धा ने उसकी बात मानकर भरोसा कर लिया। श्रद्धा और आफताब का कई बार ब्रेकअप हुआ। दोनों ने अपनी अपनी राहें जुदा कर ली, लेकिन फिर से साथ आ गए। उधर इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री हुई है और वो है श्रद्धा का एक और दोस्त, जिसने बताया कि 18 मई की शाम उसे श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, जिसमें श्रद्धा ने अपने दोस्त से कहा था कि मेरे पास एक खबर है, मैं बहुत बिजी हो गई थी। इसके बाद श्रद्धा ने दोस्त के मैसेज का जवाब नहीं दिया था। फिर कई महीनों तक श्रद्धा का जवाब नहीं आया तो उसके दोस्त ने पूछा कि तुम कहाँ हो, क्या तुम सुरक्षित हो? हालांकि कभी इसका रिप्लाई नहीं आया। पुलिस ने इस शख्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। श्रद्धा के दोस्तों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। एक एक कड़ी को जोड़कर हर रात से पर्दा उठा रही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार हो रहे खुलासे चौंकाने वाले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इस केस में अब तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है, जिससे कि कोर्ट में श्रद्धा को इंसाफ दिलाया जा सके। ऐसे में भारत 24 ने इस बात को जानने की कोशिश की कि जो बयान आरोपी ने दिए हैं, क्या उसके आधार पर श्रद्धा को इंसाफ मिल पाएगा। जहां तक उसका इकबालिया बयान का सवाल है, आज वो बयान जो है सिर्फ पुलिस के सामने है, और वो भी जब तक उसकी मेंटल हेल्थ डिसाइड नहीं हो जाती तब तक उस बयान का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही अगर जो है उसका 164 स्टेटमेंट भी ले लिया जाए तो 164 स्टेटमेंट के हिसाब से भी जो है अगर मेंटली उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो चाहे मजिस्ट्रेट साहब के सामने लिया गया हो या कहीं भी लिया गया हो, उस बयान की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो सबसे पहले जो है पुलिस को जो है, जो अभी मीडिया ट्रायल के हिसाब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ही वॉज मेंटली अनफिट, और लगता भी है कि कोई भी एक इंसान जो है एक बॉडी के इतने टुकड़े करके और उसको अलग अलग जगह पे फेंकेगा तो डेफिनेटली मेंटली अनस्टेबल अनफिट पर्सन रहा होगा। आज के ही पेपर में देखेंगे तो आपको डॉक्टरों का बयान मिलेगा कि ऐसा काम जो है कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मेंटली जो है फिट नहीं था, और अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहे कितना भी जोर लगा ले, अगर मेंटली अनफिट पर्सन ने ऐसा कुछ काम किया है तो शायद प्रोसिक्यूशन इतना सक्सीड नहीं होगा। हालांकि प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही जल्दी इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। और चलिए इसी बीच आपको इसी से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट बता दें। दरअसल कल हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में टेस्ट होगा। आफ्ताब के नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी के लिए पुलिस ने एफएसएल टीम से अनुरोध किया है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में टेस्ट होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरे मामले को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आ चुका है। नया अपडेट क्या? दरअसल अपडेट ये कि आफ्ताब के नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी होगी, उसका नार्को टेस्ट होगा। वीडियोग्राफी के लिए पुलिस ने एफएसएल टीम से अनुरोध किया है कि नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी का बड़ा एक्शन सामने आया कि बागी नेताओं के खिलाफ अब एक्शन होगा। बीजेपी ने 7 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला। बागी विधायकों ने निर्दलीय पर्चा भरा था, एक्शन उन पर लिया गया। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय पर्चा कुछ नेताओं की तरफ से भरा गया, और ऐसे में अब गुजरात चुनाव को लेकर चूंकि बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है और बागी नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन पार्टी ने लिया। 7 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए चयनित 1354 स्टाफ नर्सेस को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भारत 24 से खास बातचीत की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में स्टाफ नर्सों का पैरा मेडिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद हैं उनको हम भरते जा रहे हैं। 1354 पदों पर स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए और लगातार ये भर्ती प्रक्रिया इसी तरह से जारी रहेगी। कहना कितना फायदा होगा लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद थे उनको हम भरते जा रहे हैं और 1354 पदों पर स्टाफ नर्सेज की आज भर्ती के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर चयन हुआ है। मैं चयनित सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि हजारों की संख्या में स्टाफ नर्स जब हॉस्पिटलों में जाएंगी तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें काफी सुधार होगा? चिकित्सा क्षेत्र में स्टाफ नर्सेज का, पैरामेडिकल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और लगातार भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। और लखनऊ में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नर्सेस काफी खुश नजर आई। ऐसे में हमारे संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी ने नर्सेस से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में जुटी हुई है, लगातार भर्तियां कर रही है। हमारे साथ कुछ स्टाफ नर्स हैं जिनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में नियुक्ति पत्र दिया है। उनके चेहरे पर साफ तौर से मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। आपका क्या कहना? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको आज रोजगार पत्र मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पत्र का बहुत इंतजार था
और बहुत खुशी हो रही है योगी आदित्यनाथ जी को देख के, लाइव बिल्कुल देख के बहुत खुशी हो रही है। पत्र मिलके तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है, इन्होंने लाइव मुख्यमंत्री को देखा। आप बहुत सवेरे से खुश दिखाई दे रही हैं नियुक्ति पत्र पाने के बाद। जी सर, हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस ज्वाइनिंग की, अब जाके फाइनली हमें मिल गया है योगी आदित्यनाथ जी के सर के हाथों से। काफी खुशी हो रही है। आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कितनी सेवा करेंगे मरीजों की? जितनी ज्यादा हो सकेगा उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, इंतजारी के बाद ये नियुक्ति पत्र हमको मिला है और आज उन योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप उत्तर प्रदेश सरकार की स्टाफ नर्स हो गई हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने आपको दिया है, मरीजों की खिदमत करनी है, क्या कहना है? सब पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 1 साल हम लोगों ने इंतजार किया, आज वो दिन फाइनली आ गया कि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया और अब हम लोग अपनी सेवा अच्छे से अपने विभाग में प्रदान करेंगे। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश की ये जो नर्सें हैं, तकरीबन 1354 नर्सों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया है और इनके चेहरे पर खुशी साफ तौर से दिखाई दे रही है। इनका साफ कहना है कि अब वो अच्छी तरीके से हॉस्पिटलों में जाकर मरीजों की सेवा करेंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का तहे दिल से शुक्रिया कह रही हैं कि 1 साल से वो इस नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रही थी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ इत्तेशाम सिद्दीकी, भारत 24। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे मैनपुरी उपचुनाव में पूरा यादव कुनबा डिंपल यादव को जिताने के लिए एकजुट नजर आ रहा है। सेफाई के एसएस मेमोरियल स्कूल में आज शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के साथ बाकी सदस्य एक मंच पर नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल और रामगोपाल के पैर भी छुए, साथ ही चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी बोला। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि आपने कहा एक हो जाओ, हम एक हो गए, बहू को जिता देना। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हैदराबाद में एक्ट्रेस का विरोध प्रदर्शन, सुनीता बोया ने निर्वस्त्र होकर धरना दिया। निर्माता बन्नी वासु पर आरोप लगाए हैं। दरअसल सुनीता ने पहले भी वासु पर केस किया था, सबूत के अभाव में कोर्ट ने उनका केस खारिज कर दिया था। अब देखिए, ये प्रदर्शन किया गया एक्ट्रेस की तरफ से। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर होने के बाद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को भारत जोड़ो यात्रा के समन्वय के रूप में शामिल नहीं किया गया है। दरअसल तीनों नेताओं को कांग्रेस विधायक दल के समानांतर बैठक बुलाने के मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नोटिस दिया गया था। हालांकि नोटिस के 50 दिन से ज्यादा का समय निकल जाने के बाद भी तीनों नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य स्तर की समन्वय समिति का गठन किया है। इस समिति में सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी महासचिव अजय माकन, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 32 नेताओं को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से विभीषण का जिक्र किया गया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने पार्टी के ही दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों को मंच पर ही सबके सामने विभीषण कहकर संबोधित किया तो बवाल मच गया। संबोधन का वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ऐसे में दरअसल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव गुना दौरे पर है। इस दौरान भरे मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को उन्होंने विभीषण बता दिया। वायरल वीडियो में मुरलीधर राव कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सब विभीषण अब इधर आ गए हैं। मुरलीधर राव के बयान के वक्त सिंधिया समर्थक 2 मंत्री भी मंच पर ही मौजूद थे। मुरलीधर राव के बयान के बाद इन मंत्रियों ने कहा कि हम तो श्री राम के सेवक हैं।